Good morning, everyone. In this video, I am going to discuss about derivation and derivation tree, which we are going to use in context-free grammar. So, what is derivation and what is derivation tree? What it is used for? Actually, a derivation is done to parse a string. Suppose there is a grammar and a string is given in front of us, and we have to check the validity of any string according to some grammar, given grammar. Then we have to use these derivation to check or to parse the string and check whether that given string is valid or not. So the purpose of this derivation and derivation tree is to check the validity of string according to the given grammar, or if I say it directly, it is used to parse the string. Okay. Then talking about the different ways of parsing or different ways of derivation. So there are two ways of derivation. First one is leftmost derivation, which is also known as LMD. And second one is rightmost derivation, which is also known as RMD. Now, by the help of one example, I am going to tell you how we are going to derive some string or check the validity of some string by using these derivations. So there is there is a question in front of you in which first of all a grammar is written with blue color, that is S produces AB, A produces 0A oblique A, B produces 1B oblique 1, and a string is given there, that is 00111, whose validity is to be checked according to the given grammar. So how we are going to do this? Let us see. So first of all, so grammar and string is written here in the right hand side of the window. Now, first of all, I am going to use LMD in front of you and I am trying to prove कि ये string valid है या नहीं है. ठीक है. तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ दी स्टार्ट वेरिएबल. स्टार्ट वेरिएबल के जो भी प्रोडक्शंस होंगे उनमें से हम एक, अगर एक दिया है तो वी हैव नो ऑप्शंस, वी हैव टू यूज दैट ओनली. अगर एक से ज्यादा प्रोडक्शंस हैं एस के या स्टार्ट वेरिएबल के, देन वी हैव टू डिसाइड विच प्रोडक्शन इज टू बी चूजन सो दैट हमारी स्ट्रिंग पार्स हो सके. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एस प्रोड्यूसेस ए बी ही एक प्रोडक्शन है स्टार्ट वेरिएबल का, तो मैंने उसे चूज कर लिया. नाउ अगर आप देखें, सिंस आई हैव रिटन हियर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट मींस आई एम यूजिंग, आई एम गोइंग टू यू कैन से एक्सपैंड द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल ऑफ राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड में लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है? ए है, which is here red in color. I have highlighted it with red color. तो लेफ्ट हमेशा हम क्या करेंगे? लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को ही एक्सपैंड करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पर मैंने क्या किया, ए को एक्सपैंड करना है तो ए की जगह मैं उसके प्रोडक्शंस देखूंगा क्या क्या है. फर्स्ट वन इज ए प्रोड्यूसेस 0A and second one is A produces 0. You can see here in right hand side of this window. यहाँ पर A के दो प्रोडक्शन है, A produces 0A and A produces A. Now we have to decide whether we have to use 0A here in place of this A or we have to use 0 in place of this A. तो यहाँ पर अगर हम 0 को रखेंगे, लेट अस सपोज कि हम 0 रखते हैं, तो आप देखिए ये स्ट्रिंग बन जाएगी 0B, राइट. और 0B का मतलब होगा, यहाँ पर आप देखें तो इस तरीके से बात होगी ये. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू. अगर मैं यहाँ पर रखता हूं लेट्स से 0, तो इट विल बिकम 0B. नाउ व्हाट विल हैपन कि B को जो हम एक्सपेंशन करेंगे वो सिर्फ 1 के फॉर्म में कर सकते हैं. इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही 0 में काम खत्म हो गया, लेकिन हमारी स्ट्रिंग में 2 0 हैं. सो द चॉइस व्हिच वी मेड इज इनकरेक्ट. So what we have to do, we have to use 0A in place of A here. So I'm going to use a 0A in place of A. So I have replaced A with 0A production. Now this 0A production, now we have what we have got, we have got 0AB in total. Now we'll look for the leftmost variable. Now here you can see 0AB is written. Now 0 is a terminal. ठीक है, terminal is the end thing of the string. उसके बाद उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, हम वेरिएबल को ही एक्सपैंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल की बात करें तो वो क्या है? ए है. तो मैंने देखिए ए को रेड से हाईलाइट कर दिया है.
ठीक है। इसका मतलब कि अब हम a को एक्सपैंड करेंगे। नाउ a को एक्सपैंड करने के लिए अगेन द सेम क्वेश्चन अराइजेस that which production is to be used, 0a or 0. Now since we need only 2 zeros here in our string, तो हम यहाँ पर अब अगर a की जगह 0 रख दें तो हमारा काम हो सकता है, हमको 2 0 मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर a की जगह 0 प्लेस कर दिया है, आप देखें, और अब हमको मिला है स्ट्रिंग 0 0 b। Now what is the leftmost variable here? The leftmost variable here is b now. Okay, so I have highlighted b with the red color because 0 0 तो टर्मिनल है, उनको हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल b है। अब b को एक्सपैंड हम करेंगे किसमें? दो प्रोडक्शंस है हमारे पास, दो चॉइसेस है, 1b एंड 1। तो अगर हम सिर्फ 1 रख देते हैं तो आप देखेंगे यू विल गेट द स्ट्रिंग 0 0 1 which is not the string which we are going to prove. हमको तो चाहिए 0 0 1 1। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम उसको रख कर देखते हैं। ठीक है, तो हमने b की जगह 1 भी रख दिया। देखिए, अब b की जगह 1 भी रखा हमने, तो अब हमारे पास लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या बचा? b, बिकॉज 0 0 1 तो टर्मिनल है, तो हम b को हाईलाइट करके मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। नाउ b को मैं एक्सपैंड करूंगा फिर से, तो मैं फिर से वही क्वेश्चन बोलूंगा कि 1b में करें या 1 में करें। तो अगर हम 1 में करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 1 में लिमिट हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग, हमें तो 3 1 चाहिए हैं। तो हम क्या करें, b की जगह 1b रखें। तो we'll substitute the value of b as 1b. Okay, now what is the leftmost variable now? So leftmost variable is b now. Okay, so we have I have highlighted it with the red color, b. Now what is to be done? Now in place of b, फिर से वही क्वेश्चन, दो प्रोडक्शंस हैं 1b और 1। तो अगर हम 1b रखते हैं तो 3 से ज्यादा 1 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो इसलिए हमें 1 रखना पड़ेगा अगर हमें ये जो गिवन स्ट्रिंग है 0 0 1 1 ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर b की जगह क्या रखेंगे? यहाँ पर हम b की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर b की जगह जैसे ही 1 रखा हमने, तो यहाँ पर देखिए you have what happened? You have got the string which you were trying to prove, right? So this is the valid string. You can declare that yes, the string given, the string is actually valid string as per the given grammar. Now this is the derivation, okay? Leftmost derivation. Now in the same way we will perform the rightmost derivation. Okay, so rightmost derivation में क्या होगा? तो let us see, यहाँ पर क्या होगा, आपको डेरिवेशन के बाद डेरिवेशन ट्री भी बनाना है, राइट? बिकॉज द टॉपिक इज डेरिवेशन ट्री। ट्री कैसे बनेगा? तो लेट मी शो यू विथ आरएमडी। वैसे ही एलएमडी में करेंगे, सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले आरएमडी में भी हम शुरू करेंगे कहाँ से? स्टार्ट वेरिएबल से। सो आई हैव रिटन हियर एस प्रोड्यूसर्स ए बी। नाउ हियर राइट मोस्ट, यहाँ पर जैसे ही एस प्रोड्यूसर्स ए बी किया तो मैं पैरेलली यहाँ पर आपको ट्री बनाकर भी बता रहा हूँ। तो देखिए, मैंने एस प्रोड्यूसर्स ए बी, तो एस से ए और बी नाम की दो ब्रांचेस निकली। नाउ अब यहाँ पर मैं किसको एक्सपैंड करूंगा? तो आई विल एक्सपैंड बी हियर। व्हाई? बिकॉज बी इज द राइट मोस्ट वेरिएबल ऑफ द प्रोडक्शन। तो बी को मैं एक्सपैंड करूंगा 1b या 1 में, तो मैं 1b में करूंगा, बिकॉज अगर सिंगल 1 रखता हूं तो वहां पर सिंगल 1 की वैल्यू ही आ जाएगी, फिर और कुछ नहीं, जीरो, बाकी 1 हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो आई हैव रिटन 1b हियर, राइट? अब a1b आया, जैसे ही a1b आया तो मैं यहाँ पर ट्री में भी वो चीज डिस्प्ले कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, b को 1b में एक्सपैंड किया। सो यहाँ पर देखिए, b को मैंने 1 और b में एक्सपैंड किया। नाउ हियर यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई आई हैव ड्रॉन a square node for the terminal and round node for the variable, just to differentiate what is terminal and what is variable. Actually we are looking for the terminals in turn at the last. So यहाँ पर मैं जितने भी टर्मिनल्स आएंगे ना, उनको मैं एक स्क्वायर बॉक्स से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, बाकी वेरिएबल्स को मैं सर्कुलर बॉक्स से ही रिप्रेजेंट करता रहूंगा। देयर इज नो कंपल्शन लाइक दिस, आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो ना भी करिए, तो इट विल नॉट कुड बी नॉट रॉन्ग एक्चुअली। ठीक है, ये सही होगा। अब यहाँ पर आप देखें तो b जो है a1b में, b जो है दैट इज राइट मोस्ट वेरिएबल। तो राइट मोस्ट वेरिएबल है तो इसको एक्सपैंड करना है, तो अगेन मैं इसको किस में एक्सपैंड करूंगा? 1b में। अब जैसे ही मैंने 1b में एक्सपैंड किया तो आप देखिए b के नीचे मैं फिर से वहां यहाँ पे मैंने क्या बना दिया?
1 b, राइट। अब यहां पर देखें तो राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, तो राइट मोस्ट वेरिएबल इज b एक्चुअली। आप यहां देखें, आई हैव हाईलाइटेड इट विथ रेड कलर। तो अब मुझे ये हाईलाइटेड वाला जो b है इसको मुझे एक्सपैंड करना है। ये मैंने सिर्फ हाईलाइट किया है आपको समझाने के लिए, ऐसा आपको कुछ मार्क नहीं करना है वहां पर जब आप सॉल्व करें। You just have to keep it in mind that which is the rightmost variable, which is the leftmost variable while solving the question. So you have converted b to 1 now because 3 1 आपकी requirement आपकी पूरी हो चुकी है, right? So a triple 1 is the string what you have got. Now the rightmost variable now is actually, यहाँ पर देखिए मैंने tree में भी b को 1 जो convert किया उसको reflect कर दिया. Now what we will do, we will expand a because अब राइट मोस्ट वेरिएबल a ही बचा है, because a ही अकेला वेरिएबल बचा है तो वही राइट मोस्ट होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, a को एक्सपैंड करूंगा। तो a को या तो 0a में कर सकता हूँ या तो 0 में कर सकता हूँ। 0 में इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज मुझे 2 जीरोस चाहिए हैं, ठीक। तो मैंने क्या किया, इसको 0a में एक्सपैंड किया। अब 0a में एक्सपैंड करने के बाद फिर से मैं वही जज करूंगा कि विच इज द राइट मोस्ट। यहाँ पर देखिए ट्री में भी मैंने 0a बनाया है। The thing which should be kept in mind while drawing the derivation tree, this is the most important thing here, that you have to keep the levels in your mind. अगर आप S produces AB इस लेवल पर बना रहे हैं और B produces 1B उसके बाद कर रहे हैं, then again B produces 1B उसके नीचे बना रहे हैं, and then B produces 1 उसके बाद बना रहे हैं, तो A produces 0A इस लेवल के नीचे ही बनेगा। अगर आपने यहाँ पर a के जस्ट बाद यहाँ पर आपने 0 और a रख दिया तो इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर आप जज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा स्टेप कब सॉल्व हुआ था। सो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी रॉन्ग। आपको क्या करना है, लेवल्स का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने b प्रोड्यूसेस 1 के बाद अगर a प्रोड्यूसेस 0a किया है तो इस लेवल के नीचे ही आप 0 और a के नोट्स बनाएंगे। प्लीज कीप इट इन माइंड। देन अब हम 0a में a ही हमारे पास लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट वेरिएबल है। तो राइट मोस्ट वेरिएबल a को मैंने क्या किया, यहाँ पर a को अब मैं 0 रख दूंगा बिकॉज हमको 2 0 ही चाहिए थे स्ट्रिंग में प्रूव करने के लिए। सो नाउ a को मैंने जैसे ही 0 लिखा तो अब क्या हो गया, 0 0 1 1 1। सो दिस इज द स्ट्रिंग। यहाँ मैंने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया अपने डेरिवेशन ट्री में भी। तो अगर अब आप ध्यान से देखें तो आप देखिए all the leaf nodes from left to right, if you trace it, what it is giving you, it is actually giving you the string which you are going to prove, 0 0 1 1 1, और यही स्ट्रिंग आप प्रूव करना चाहते थे। सो इस तरीके से डेरिवेशन ट्री बनाएंगे हम इसमें। सो इस तरीके से हम ये प्रूव कर लिया हमने कि इट इज अ वैलिड स्ट्रिंग। ओके, नाउ ये देखिए मैंने इसको रेड से हाईलाइट कर दिया। ये 0 0 1 1 जो है ये हमारी लीफ नोड्स पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम ट्रेस करें तो हमारी एक वैलिड स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, नाउ अगर हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात करें जो हमने पढ़ा अभी, जिसका हमने ट्री नहीं बनाया था, अगर उसकी बात करें तो उसमें भी वही चीज होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में मैंने क्या किया था, वही एस प्रोड्यूसेस ए बी किया था। देन ए को मैंने लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को मैंने एक्सपैंड किया था, उसको 0a बनाया था, देन 0b। देन इस तरीके से मैंने इसको ट्रेवर्स करते हुए अपनी स्ट्रिंग को प्रूव किया था 0 0 1 1 1। अगर मैं इसके ट्री की बात करूं, डेरिवेशन ट्री की, तो यहाँ पर S प्रोड्यूसेस ए बी पहले सबसे पहले काम ये हुआ है। देन मैंने A को 0a बनाया है तो मैं यहाँ पर 0a बना दिया मैंने। देन अगेन A को मैंने 0 बनाया है तो यहाँ पर A को 0 ट्री में ट्रेवर्स करके बना दिया। देन B को मैंने 1b बनाया है, बट ध्यान रखिए उसका लेवल क्या होगा, उसका लेवल इस लेवल से नीचे होगा, 0 लेवल से। ठीक है, फिर मैंने b को 1b अगेन बनाया है और लास्ट में b को 1 बनाया है। तो इस तरीके से लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का भी आप डेरिवेशन ट्री बना सकते हैं। So these are the in the similar way, these are few questions which you can try with yourself and practice the topic accordingly. Thank you so much.